آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں تو مجھے ہمت ہو رہی ہے کہ میں کچھ گفتگو کروں، آپ سے کچھ بات کروں. اگر آپ سنیں گے تو میں بات بس کروں گا. لوگ کہتے ہیں عشق عشق عشق، اہل سنت کے اسٹیج سے بھی عشق رسول کی بات ہوتی ہے، محبت رسول کی بات ہوتی ہے، لیکن کیا اللہ اکبر بعض لوگوں کی محبت، بعض لوگوں کا عشق تھوپا جاتا ہے، یعنی انسان اس قابل نہیں رہتا پھر بھی اس کا عشق تھوپا جاتا ہے، پھر بھی اس کی محبت تھوپی جاتی ہے. جیسے اللہ اکبر ہندوستان والوں پر آج کل کچھ لوگوں کی محبت تھوپی جا رہی ہے، یعنی زبردستی تھوپی جا رہی ہے، تو کیا ہم مسلمان رسول اللہ کی محبت کو معاذ اللہ تھوپتے ہیں، زبردستی تھوپتے ہیں؟ اگر آپ سچائی کے ساتھ حضور کی زندگی دیکھو تو میں کہتا ہوں ہم نبی کی محبت نہیں تھوپتے، بلکہ یہ نعمت تو قسمت والوں کو کہ جو دیکھ لے وہ بھی عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور جو ان کی زندگی کو پڑھ لے وہ بھی عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے. ہمارے آقا ایسے ہیں. بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب ماشاءاللہ. یا رسول اللہ، یہ دیکھو جذبہ، یہ کبھی کسی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا، آج اتنی پبلک میں نعرہ لگا سکتے ہیں. پیار بے عشق محبت، یہ عاشق رسول. میری گزارش ہے یا تو محفل میں نعرہ نہ لگے، اور اگر لگے تو پھر پوری محفل جواب دے کہ میں بھی عاشق رسول ہوں. محفل میں توجہ کریں، محفل میں یا تو سب چپ رہے یا پھر اپنے نبی کا ذکر سن کر سب بلند آواز سے زبان کہے سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے کہ آپ زبردستی کسی مجبوری میں آ کے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینے والے نے بلایا ہے. یہ محفلیں قسمت بدل دیتی ہے، یہ محفلیں مقدر بدل دیتی ہے، یہ محفلیں تقدیر بدل دیتی ہے. اور خدا کی قسم ذکر مصطفیٰ وہ ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام 200 سال تک خدا سے دعا کرتے ہیں مگر جواب نہیں آتا، لیکن جب ذکر مصطفیٰ آتا ہے تو آدم کی دعا بھی قبول ہو جایا کرتی ہے. رسول کیا چیز ہے؟ پھر میں نے دعویٰ کر دیا آپ کے سامنے. دعویٰ کیا کیا کہ میرے نبی ہیں ہی ایسے، میرے آقا ہیں ہی ایسے، میرے محبوب ہیں ہی ایسے کہ جو دیکھ لیتا ہے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جو سن لیتا ہے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ان کی محبت تھوپنا نہیں پڑتی. اتنے خوبصورت ہے میرے آقا، اتنے خوبصورت ہے میرے آقا، اتنے حسن والے ہیں میرے آقا کہ قربان اللہ اکبر. حضرت مولا علی فرماتے ہیں مولا کائنات، میں اپنے جوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، آج تم نے ہیرو کو اس لیے دل دیا کہ تم کو آمنہ کے لال کا حسن پتہ نہیں ہے. تم فلموں میں اس لیے ڈوبے ہوئے ہو کہ تم کو آمنہ کے لال کی حیثیت اور ان کی شان پتہ نہیں ہے، ان کا مقام اور مرتبہ پتہ نہیں ہے. آؤ اپنے نبی کی شان سنو، اپنے نبی کا مقام سنو، اپنے نبی کا مرتبہ سنو. اس لیے کہ ہمارا نبی کون نبی، ہمارا نبی کون نبی؟ بریلی کا تاجدار کہتا ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور مہدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
आज इश्क करना सीखना है। आज इस महफिल में, वली की महफिल में इश्क करने का तरीका सीख के जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन पहले इब्तिदा करना चाहता हूँ, हमारे नबी हैं ही ऐसे जो अपने बेगाने समय उनसे कहता हूँ, हमारे नबी हैं ही ऐसे जो देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए, जो सुन ले उनको इश्क करने पे मजबूर हो जाए। मेरे आका मौलाए कायनात सैयदुल सादात अली ये मुर्तज़ा कहते हैं कि मेरे आका इतने खूबसूरत थे कि हुजूर के गालों में दीवारों का अक्स नजर आता था, हुजूर के गालों में दीवारों का अक्स नजर आता था और मुस्कुराते थे अल्लाह अकबर तो चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरा नजर आता था। अगर चांद के सामने खड़े हो जाते थे तो चांद उनके गालों में तैरता नजर आता था। अगर सूरज के सामने खड़े हो जाते थे तो सूरज उनके गालों में तैरता नजर आता था। अल्लाह अल्लाह, लोग अपना चेहरा उनके चेहरे के अंदर आईने में देखते थे, चेहरे के आईने में देखते थे, रुखसार से नूर की ऐसी किरणें निकलती थी अल्लाह अकबर कि अंधेरी रात में गलियां जगमगा जाया करती थी, गलियां रोशन हो जाया करती थी अल्लाह अकबर। आज मैंने एक दावा कर दिया, हालांकि टाइम की किल्लत है, मेरे आका हैं ही ऐसे, मेरे आका हैं ही ऐसे, मेरे आका हैं ही ऐसे कि जो देख ले या जो सुन ले उनको उसके दिल में इश्क पैदा हो ही जाता है। इस दावे की दलील क्या है, आइए जरा करते हैं, बात करते हैं। इसलिए कि कोई खूबी तो होनी चाहिए ना, इसके लिए कोई खूबी तो होनी चाहिए। ऐसी खूबी हुस्न हो तो लोग इश्क करते हैं, इल्म हो तो लोग इश्क करते हैं, तकवा हो तो लोग इश्क करते हैं, सखावत हो तो लोग इश्क करते हैं, खूबियां हो तो लोग इश्क करते हैं। आज ये बहुत लंबी नहीं करता, सीरत की तमाम किताबें, अक्सर किताबों का इतने मजमूआ निचोड़कर एक वाकया पेश करना चाहता हूँ। जवानों दिल से सुनना, अगर किसी के दिल में आज इश्क की चिंगारी लग गई तो समझना मेरा आना कामयाब, आपका आना कामयाब, हज़रत शर्फ अब्दाल की चौखट पे बैठ जाना कामयाब इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कहते हैं अल्लाह अकबर कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ, अभी मेरे आका की उम्र मुबारका जो है 24 या 25 साल के करीब की थी। ऐसे में एक बेवा खातून जो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, जो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, 2 बार बेवा हो गई और 2 बार बेवा होने के बाद ये पक्का इरादा कर लिया अब तीसरी मरतबा मैंने निकाह नहीं करना, इसलिए कि 2 बार शौहरों की मैयत पे रो चुकी हो, अब तीसरी बार मैंने नहीं रोना, तीसरी बार मैं नहीं रोऊंगी। इसलिए क्यों नहीं रोऊंगी, जब निकाह ही नहीं करूंगी, शौहर मरेगा ही नहीं तो मैंने उसके जनाजे पर रोने की तकलीफ भी नहीं उठाना। मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने, अरब के बड़े बड़े सरदारों ने उस पाकीज़ा तैयबा ताहिरा खातून के साथ जो है वो निकाह का इरादा जाहिर किया। उस खातून ने कह दिया मैंने किसी के साथ निकाह नहीं करना। हालांकि पूरे मक्के में वो खातून इतनी मुत्तकी और पारसा थी कि ज़माने जाहिलियत में भी लोग उनको तैयबा और ताहिरा के लक़ब से याद करते थे। और इतनी मालदार थी वो खातून, वो इतनी मालदार थी कि उस खातून को मक्के वाले मलका तुज्जार कहते थे, यानी ताजिरों की मलका कहते थे। अब आप अंदाजा करें, पूरे मक्के में किसी के पास इतनी दौलत न थी, पूरे मक्के में किसी के पास इतना माल न था जितना माल उस खातून के पास था। और उस मुकद्दस खातून का नाम था खदीजतुल कुबरा। वो खदीजा नाम की खातून थी। अल्लाह अकबर, हुस्न में बेमिसाल, तक़वे में बेमिसाल, इल्म में बेमिसाल, वो शायरा भी थी, शेर भी कहती थी, सूझबूझ वाली थी, मलका तुज्जार थी वो खातून। अल्लाह अकबर, उस खातून के साथ मक्के के कुछ गुंडे चीटिंग करते थे। मक्के के कुछ गुंडे चीटिंग इस तरह करते थे कि जब उसका माल तिजारत ले जाते तो माल तिजारत खा जाते और आकर कहते ना नुकसान हो गया, आकर कहते फायदा नहीं हुआ। अब एक औरत किस किस से लड़ती, किस किस से बातें करती, तो वो थक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। वो सोचती है या अल्लाह, आखिर कौन ऐसा मिलेगा मक्के में जो मेरा माल तिजारत ले जाए और फिर सच्चे अमानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ माल कमा के ला के मुझे दे। तो किसी ने उनको मशवरा दिया, खदीजा को मशवरा दिया, खदीजा मक्के में जवान रहता है, खदीजा मक्के में जवान रहता है, खदीजा मक्के में जवान रहता है, ऐसा जवान है कि उसकी तहारत की कस्में खाई जाती है, उसके किरदार की कस्में खाई जाती है। पाकीज़ा अंदाज़ के मक्के वाले में यूं कहते हैं कि दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। अल्लाह अकबर। कहा कि वो कौन है, वो कौन है? खदीजा ने पूछा वो कौन है, मैंने तो उसको कभी देखा नहीं, वो कौन है? तो लोगों ने कहा वो अब्दुल्ला और
आमिना का दुर्र यतीम है, हजरत अबू तालिब का भतीजा है और उसका नाम मोहम्मद है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। खदीजा ने अल्लाह अल्लाह रसूलुल्लाह के चचा के पास पैगाम भेजा कि मुझे आपसे काम है, और फिर कहा कि मेरा माल लोग खा जाते हैं, मेरा माल लोग उचक जाते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने भतीजे को इस पे राजी करें। तवज्जो करना, आप अपने भतीजे को इस पे राजी करें कि वो मेरा माल ले जाए और बेच कर ला करके मुनाफा मुझे दे। मैं जो है वो जो कहेंगे मैं उसके एवज में उनको दूंगी। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह के चचा जनाब अबू तालिब आए। आने के बाद रसूलुल्लाह से कहा, अभी मेरे आका ने ऐलान नबूवत नहीं किया था। फरमाते हैं बेटे, एक बहुत बड़ी जो है वो अपने अंदाज में कह रहा हूँ, मैं अपने अल्फाज में समझाने के लिए, एक बहुत बड़ी ऑफर है बेटा, और हमारी गुर्बत तंगदस्ती दूर हो सकती है बेटा। खदीजा कहती है कि तुम उसका माल लेकर के जाओ। तो अल्लाह अकबर, मेरे आका ने फरमाया, चचा मैं मजदूरी नहीं करता, मजदूरी करने को पसंद नहीं करता। आका ने क्या फरमाया, चचा मैं मजदूरी करने को पसंद नहीं करता। अल्लाह अकबर। अब यह एक जुमला मैं आपकी नजर करता हूँ जवानों की। अगर इतनी खूबसूरत गुफ्तगू में भी धक्कम धक्की होगी तो मैं कहता हूँ कि इससे मैं नहीं, रसूलुल्लाह नाराज हो सकते, क्योंकि जिक्र रसूलुल्लाह का है। आपको मुझे मालूम है आपके भी बैठने को जगह नहीं है, मैं बैठने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन खड़े तो हो जाऊंगा। जैसे खड़े वैसे उधर, धक्का मत दो एक दूसरे को, मत दीजिए धक्का। एक बार दुरुस्त आप बिठाए तो आपको, आप जगह नहीं है, आपको बिठा नहीं सकते। क्या मैं गुफ्तगू मुकम्मल खत्म कर दूं गुफ्तगू? अगर आपका ज़हन ये चाहता है कि मैं बात न करूंगा, आप सिर्फ मेरी फोटो लेने के लिए आए थे तो आपका काम हो गया, लेकिन मैं फोटो खिंचाने नहीं आया था, मैं तो नबी की गुलामी करने आया हूँ ना, मैं तो जिक्र मुस्तफा करने आया हूँ ना। तो आप अगर अपना काम कर चुके तो मुझे अपना काम करने दे। और इसमें हजारों लोग ऐसे हैं जो फोटो खिंचाने नहीं आए, इसमें हजारों लोग, अक्सरियत ऐसी है जो जिक्र आपकी जिंदगी समझ जाएगी। तवज्जो फरमाएं, जब हज़रत अबू तालिब ने अपने भतीजे रसूलुल्लाह से कहा कि आपको खदीजा का माल लेके जाना है, तो सरकार ने क्या फरमाया, मैं मजदूरी को पसंद नहीं करता। यानी हुजूर क्या ज़हन दे रहे, मेरी कौम के जवानों सुन लो, हुजूर ने क्या ज़हन दिया। अल्लाह के नबी को मजदूरी पसंद नहीं है। हुजूर अपनी उम्मत को मजदूर नहीं देखना चाहते थे, हुजूर अपनी उम्मत को सेज देखना चाहते थे। हुजूर अपनी उम्मत को गुलामी करता देखना नहीं चाहते थे, नौकरी करता देखना नहीं चाहते थे, हुजूर अपनी कौम को ताजिर देखना चाहते थे। रसूल कहते हैं कि चचा न मैं मजदूर हूँ, न मजदूरी को पसंद करता हूँ। आज उस कौम की अक्सरियत मजदूर होकर के रह गई है। आज मुसलमानों की अक्सरियत मजदूरी कर रही है, मुलाजमत कर रही है, नौकरी कर रही है। कोई किराना दुकान पे नौकर है, कोई जो है अल्लाह अकबर घास की दुकान पे नौकर है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है। मुसलमानों, तुम्हारे और हमारे नबी ने नौकरी को पसंद नहीं किया। तुम नौकरी के खौल से निकलो, तुम नौकरी करने नहीं आए, बल्कि तुम लोगों से नौकरी कराने आए हो। अल्लाह अकबर। ये आफा करो और सच्ची महफिल में चाहे छोटा ही धंधा करूंगा, केला ही बेचूंगा, चना ही बेचूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन अपना खुद का करूंगा, छोटा सा कारोबार करूंगा। आजकल के नौजवान लड़के जो है वो सोचते कि मैं बड़ा कारोबार करूं। पहले ही दिन बड़े बिजनेस नहीं होते। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम शाम और मदीने के बाजार में चीजें बेच सकते हैं, तो तुम बाजार में खड़े रहने क्यों शर्माते हो? याद रखना, गुर्बत कभी कभी कुफ्र तक ले जाती है। आज मुसलमान गरीब हो रहा है, फाकतकश हो रहा है, ये दुश्मनों की साजिश है, इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश है, ताकि तुमको गरीब बनाए, तुमको फकीर बनाए। जब तुम गरीब हो जाओगे, जब तुम फकीर हो जाओगे, तो लोग रोटी देंगे और उसके बदले में तुम्हारा ईमान छीन लेंगे। फिलिस्तीन को गरीब क्यों बनाया गया? यमन को गरीब क्यों बनाया गया? दूसरे ममालिक इस्लामिया को गरीब क्यों बनाया गया? इसलिए ताकि गरीब किसी की आंखों में आके डाल करके बात करने की हिम्मत नहीं करता। जिसका पेट खाली होगा वो क्या बात करेगा? जिसका पेट खाली होगा वो किसी
کسی کا باز کیا پکڑے گا؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھو، رسول اعظم سے لے کر مفتی اعظم تک آپ کو کوئی اللہ والا، اللہ اکبر، کسی بندے کا محتاج نہیں ملے گا، بلکہ ہر ولی دینے والا ملے گا، کوئی ولی لینے والا نہیں ملے گا۔ اسی لیے تو بادشاہ ولیوں کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں، لیکن ولی کبھی بادشاہوں کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتے۔ غریب نواز گوری کے پاس نہیں جا رہے ہیں، غزنوی غریب نواز کے یہاں رہا ہے، غریب نواز جو غزنوی کے پاس نہیں جا رہے ہیں، خلجی محبوب الہی کے یہاں آ رہا ہے، محبوب الہی خلجی کے یہاں نہیں جا رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھو شمس الدین التمش بختیار کاکی کے قدموں میں آ رہا ہے، بختیار کاکی شمس الدین کے گھر چل کے نہیں جا رہے ہیں، دیکھتے چلے جاؤ بادشاہ وقت صابر کلیر کی بارگاہ میں آ رہا ہے، صابر کلیر کسی بادشاہ کے یہاں نہیں جا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ولی دینے والے ہیں، ولی لینے والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں جب سے تم نے لینا شروع کیا، جب سے تم بھیک پہ پلنے لگے، جب سے تم ٹکڑوں پہ پلنے لگے، تمہاری عزت ختم ہو گئی، تمہارا وقار ختم ہو گیا۔ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں رسول اللہ تو غریب تھے، میں کہتا ہوں جھوٹ بولتا ہے جو کہتے ہیں رسول اللہ غریب تھے، جھوٹ بولتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں حضور علیہ السلام نے فاقے کیے، مدینہ شریف میں بھی فاقے کیے، پیون کی لباس پہنے مکہ شریف میں، لیکن وہ غربت حضور علیہ السلام پر مسلط نہ تھی، حضور نے اختیاراً وہ لیا تھا، اختیار کیا تھا، ورنہ دولت حضور کے پاس اتنی تھی کہ کوئی فقیر مانگنے آتا، بھکاری مانگنے آتا تو جنگل بھر بھر کر بکریاں اس کو عطا کر، کوئی غریب دے گا، کوئی غریب دے گا۔ ارے لوگ دو چار بکرے ذبح کر کے بقرعید ختم کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی ظاہری آخری بقرعید پہ 63 اونٹ ذبح فرمائے تھے، میں اپنے جوانوں کا ذہن کھول دینا چاہتا ہوں۔ لوگ سوچتے اسلام تو سادگی کا نام ہے، پرانے کپڑے پہنو، پھٹے کپڑے پہنو، یہ سادگی ہے۔ ارے کپڑوں میں سادگی نہیں ہے پگلو، دل میں سادگی ہے، دل میں۔ کپڑا کتنا بھی بھاری پہن، لیکن دل میں گھمنڈ پیدا نہ ہو، بلکہ دل کے سب سے اچھا پہنایا اس لیے تیرا شکر ہے مولا۔ سادگی اس کا نام ہے، سادگی۔ اچھی کاروں میں گھومنے کا نام، اچھی کاروں میں گھومنے کا نام گھمنڈ نہیں۔ ارے دنیا کی دوسری قومیں جتنی مہنگی کار میں گھوم رہی ہے، اس سے زیادہ مہنگی کار میں تو گھوم تاکہ کوئی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے۔ اتنا کما، اتنی محنت کر، اتنا جمع۔ آپ کہیں گے یہ کون سی ولایت ہے؟ میں نے کہا میں کسی جماعت کی امیر سے سن کر مذہب بیان نہیں کرتا، میرا مذہب تو صفہ سے چلا یہاں تک پہنچا۔ سنو سرکار غوث پاک اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر کہ وہ بادشاہ وقت کو جس قیمت کا کپڑا میسر نہیں آتا تھا، اس قیمت کا کپڑا سرکار غوث پاک روزانہ پہن کر اتارتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار جو کرتا اتار دیا دوبارہ نہیں پہنا، وہ غریبوں کو دیا، فقیروں کو دیا۔ بادشاہ سے مہنگا کپڑا غوث پاک پہنتے تھے۔ کسی نے مجھ سے کہا ایک ملک کا پرائم منسٹر ہے، وہ روز نئے کپڑے پہن رہے، چارٹر فلائٹ میں گھوم رہا ہے۔ میں نے کہا میں اس سے کب متاثر ہونے والا، قوم کا پیسہ چرا کر کے دوسروں کے مال پہ ہوش موج کرنا ہے، میں کیا متاثر ہو جاؤں؟ میری جماعت میں میرا پیر غوث اعظم تو خود کما کر بادشاہ سے زیادہ مہنگے کپڑے پہن کر فقیروں میں تقسیم کر چکا۔ خود کما کے پہنا تب تمہاری اوقات سمجھ میں آئے۔ اس لیے تم سے کہتا ہوں کماؤ، محنت کرو، لیکن تم کیا کماؤ گے؟ تم کیا کماؤ گے جو پوری رات موبائل میں گیم کھیلتے ہوئے گزار دیتے ہو اور صبح 12 1 2 بجے تک کے سوتے پڑے رہتے ہو؟ بالکل ایسا، بالکل غلام بننے جا رہے ہو دوسروں کے۔ رات کو موبائل کا مس یوز مت کرو، مت دیکھو گندی فلمیں،
सीरियल, रात को जल्दी सो, ऐसा पढ़ के सो, जल्दी उठो। दूसरी कौमें जिस टाइम मार्केट पहुंचती है उससे पहले तुम पहुंचो। सबकी सुबह सूरज निकलने के बाद होती है, मुसलमान की सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। बहुत खूब हज़रत, आज माशाअल्लाह। कहते हो हम गरीब हो गए, तुम्हारे करतूत है। बेशक, हम मजदूर हो गए, तुम्हारे करतूत है। पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, एसएससी पढ़ के घर बैठते हैं, एचएससी पढ़ के घर बैठते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ो। माँ बाप क्यों नहीं पढ़ाते? पढ़ाओ। लोग कहते हैं मौलाना नौकरी नहीं मिलती। मैंने कहा मुसलमान नौकरी के लिए कब पढ़ाता है? जी बिल्कुल। मुसलमान को अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल करने के लिए पढ़ाता है। बच्चों को पढ़ाओ, मेहनत करो। 1-1 करोड़ का मस्जिद का मीनार बनाने की बजाय 2-2 करोड़ का मस्जिद का गुंबद बनाने की बजाय, पीरों की कब्रों पर 1-1 लाख की चादर चढ़ाने की बजाय, उस पैसों को बचा करके अपनी कौम के एजुकेशन पे खर्च करो, तालीम पे खर्च करो। पीर को 1 लाख की चादर की, जो सच्चा पीर है। बिल्कुल बिल्कुल हज़रत, बेशक जो सच्चा पीर है वो उड़ चुका है, उसको तेरी चादर की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मत डाल, कभी नहीं कहूँगा, अस्तगफिरुल्लाह। डालो, 1 लाख की न डालो, 1000 की डालो। बाकी पैसे बचा के गरीबों को एजुकेट करो, उन्हें एजुकेशन दो, कौम को ऊपर उठाओ। एक बंदा पढ़ता है, 7 पुश्तें संवरती है। आज तुम्हारे पास कोई एजुकेशन नहीं। कितने लोग पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़े लिखे हो, न दीन पढ़ा न दुनिया पढ़ी। हालांकि एक दौर वो था, डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर मुसलमानों में मिलते थे, अच्छे साइंसदान मुसलमानों में मिलते थे, अच्छे टीचर मुसलमानों में मिलते थे। यानी किसी को इल्म लेना हो तो लोग बगदाद जाते थे। बगदाद, क्योंकि इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, अच्छे जज कहाँ मिलते? मुसलमानों में। आज तुमने पढ़ना छोड़ दिया, नहीं पढ़ते। आजकल के माँ बाप को जल्दी पैसा चाहिए, छोटी उम्र में बच्चों को मजदूरी पे लगा देते हैं। मजदूरी की तरफ न बढ़ो, खुद का कारोबार करो, खुद पैसा कमाओ। इस्लाम ने पैसा कमाने से मना नहीं किया, न कमाने से मना किया, न जमाने से मना किया। अगर जमाने से मना करता तो ज़कात क्यों देता? बेशक बेशक हज़रत, बहुत भाई जमा पैसा, जमा पैसे से ज़कात निकलती है, कमाने से क्यों मना करेगा? कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालो, जब जुमा की अज़ान तुम्हारे कानों में पहुंचे तो तुम कारोबार बंद करके मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ो। ठीक, अल्लाह जब नमाज पढ़े तो फिर क्या करे? मस्जिद में पड़े रहे। तो कुरान कह रहा है मस्जिद में पड़े रहने की जगह नहीं है, मस्जिद खड़े रहने की जगह है। कुरान में पढ़ रहा हूँ आपको, क्या अदब के साथ अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, मस्जिद में पड़े रहने। ये जब से 1857 के बाद दूसरे लोग निकले ना, गठरिया पुटलिया वाले, इन्होंने मस्जिद में तुम्हें पड़ा रखा। मस्जिद पड़े रहने की जगह नहीं, मस्जिद खड़े रहने की जगह है। मस्जिद में जाओ कब? अजान हो, नमाज तो हो जाए तो क्या करो? नमाज हो जाए तो क्या करो? मैं कहूंगा तो मुजरिम बनूंगा। अल्लाह से पूछो क्या करो? अल्लाह फरमाता है फैज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है जब नमाज पढ़ चुको तो मस्जिद से बाहर निकलो, जमीन पे फैल जाओ और तिजारत करो, यानी अल्लाह का फज़ल तलाश करो। सुभान अल्लाह। मस्जिद में पड़े रहने की जरूरत है। बेशक बिल्कुल। काम धंधा करो, बोझ मत बनो, बोझ उठाने वाले बनो। सुभान अल्लाह। लोगों पे बोझ मत बनो, लोगों की जरूरत बनो, जरूरत। आज आप कहते हो हमें मारा जा रहा है पूरी दुनिया में, मैं बात कर सकता हूँ ना? अभी आऊंगा अपने उन्वान पे। क्या कहते हो? हमें मारा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल मारे जाओगे, इससे बदतर हालात आएंगे नहीं सुधरोगे तो। वो क्यों? मैंने कहा देखो अल्लाह के बंदो बात समझो, मक्खियां 2 किस्म की होती है। सही। मक्खी 2 किस्म की होती है। आपकी मक्खी 2 किस्म की। एक मोहल्ले की मक्खी होती है, गली कूचे में घर में मक्खी होती है, उसको क्या कहते हैं? आपके यहाँ भी मक्खी कहते हैं ना? जी जी। और एक शहद की मक्खी होती है।
वो भी मक्खी होती है। बिल्कुल। दोनों का मुंह एक जैसा, दोनों के पर दो, दोनों की टांगें एक जैसी। लेकिन जो शहद की मक्खी है वो होती है बड़ी तेज। ये मोहल्ले की मक्खी बेचारी काटती भी नहीं है। मोहल्ले की मक्खी बोलो कभी काटती है? ये शहद की मक्खी इतनी दहशतगर्द है कि अगर काटती है तो डंक के अंदर छोड़ के भाग जाती है, सुझा देती है। यही है ना? है दोनों मक्खी। लेकिन हैरत की बात है, ये भोली वाली सीधी सादी मक्खी है, वो मक्खी बड़ी तेज मिजाज। लेकिन इस मक्खी को लोग मारते हैं। बोलो है कि नहीं? इस मक्खी को लोग मारते हैं। और उस मक्खी को मारते नहीं है, फार्म बना बना कर उसको पालते हैं। इसको मार रहे और उसको पाल रहे। क्यों? ये मक्खी बोझ है लोगों पर, बोझ, इसलिए मारी जा रही है। और वो मक्खी लोगों की जरूरत है, जरूरत, इसलिए पाली जा रही है। अब अगर चाहते हो दुनिया में सर उठा के जीना तो लोगों पे बोझ मत बनो, लोगों की जरूरत बनो। लोग तुम्हें पालने पे मजबूर हो जाएंगे। फिर एक और बात, ये मक्खी मोहल्ले की क्यों मारी जाती है? क्योंकि ये पाखाने पे बैठती है, ये गंदगी पे बैठती है, यही है ना, इसलिए मारी जा रही है। शहद की मक्खी कभी पाखाने पे नहीं बैठती, कभी गंदगी पे नहीं बैठती, फूल पे बैठती है, फल पे बैठती है, इसीलिए पाली जा रही है। तो शहद की मक्खी बता रही है मैं भी मक्खी, वो भी मक्खी, वो पाखाने पे बैठी तो मारी गई, मैं फूल पे बैठी तो पाली गई। तो हमको ये पहचान दिया जा रहा है, गुनाहों के ढेर पे गंदगी पे मत बैठा करो, चूहे की गंदगी पे मत बैठा करो, सिना की गंदगी पे मत बैठा करो, शराब की गंदगी पे मत बैठा करो। अगर तुम गुनाह की गंदगी पे बैठोगे, पाखाने पे बैठने वाली मक्खी की तरह मारे जाओगे। और अगर नेकियों के फूलों पे बैठोगे तो शहद की मक्खी की तरह पाले जाओगे। सुधरो, नेक बनो। लोग कहते हैं हिंदुस्तान के हालात खराब, हिंदुस्तान के हालात, क्या हालात खराब है? तुम खराब हो। वरना आज हम लोग इसी एरिया में पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं, कहीं भी खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। गैर मुस्लिम भाई लोग हमारे लिए किसी को आगे गुजरने नहीं देते, इज्जत से मिलते हैं, दुआ के लिए कहते हैं महाराज दुआ करना हमारे लिए। मैंने लोगों को देखा है, आप सुधरो तो सब अच्छा हो जाए। आप ताश के पत्ते खेलते रहो, आप जुआ खेलते रहो, आप माँ बाप को सताते रहो, आप जिना के अड्डे पे जाते रहो, आप शराब के अड्डे पे जाते रहो, अल्लाह लोगों का तुम्हें दुश्मन बनाए, अल्लाह बनाएगा दुश्मन, अल्लाह तुम्हें पिटवाएगा। जमीन के ऊपर काफिरों से पिटवाएगा और जमीन के अंदर फरिश्तों से पिटवाएगा। अगर पिटने से बचना है तो आओ रसूलुल्लाह के दामन में पना लो, नेक बनो। अगर अल्लाह अकबर, सच्चे नेक बन जाओगे, सच्चे नेक बनो, दुनिया का हर मुसलमान काफिर सब तुम्हारी इज्जत करेगा। लोग कहते हैं हालात खराब है, मैं एक बात बताता हूँ, देखो सच्ची बात होंगे, हमें उससे कोई गरज नहीं है, होंगे हमें उससे कोई गरज नहीं। मैं कोई किसी की तायीद नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की तायीद नहीं कर, हो सकता होंगे हो सकता है। लेकिन एक बात आपसे कहता हूँ, हम सुधरे तो हालात कुछ नहीं। अगर हालात खराब है, दुश्मनी का माहौल है, तो एक मुसलमान तुम भी हो, एक मुसलमान गरीब नवाज भी है। लोग तुम्हें नफरत की नजर से देखते हैं। गरीब नवाज के यहाँ के लोग जो मुसलमान नहीं फूल ले जाकर के क्यों डालते हैं? क्यों डालते हैं वहाँ? वो भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, तुमसे नफरत उनसे मोहब्बत क्यों? ख्वाजा बता रहे हैं मैं कभी गुनाहों की गंदगी पे नहीं बैठा तो अल्लाह ने मेरी मोहब्बत काफिरों के दिल में भी पैदा कर दी। और तू बात कर रहा है तो तेरे बेटे भी तुझसे नफरत कर रहे, तेरी औलाद, तेरे पोते भी तुझसे नफरत कर रहे। गुनाह छोड़ दो, नेक बन जाओ, दोस्त दुश्मन सब मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, जमीन पे इंसान ताज़ीम करेंगे जमीन पे, और कब्र में जाओगे तो फरिश्ते एहतराम करेंगे। मेरे इमाम कहते हैं नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। तो मेरे भाइयों बात दूर निकल गई, ये पैगाम दे रहा था मजदूरी करने से कोशिश करो बच्चों। आज तय करो मेरे जवानों,
कोई छोटा मोटा कारोबार, अगर आप ये समझते हो छोटा कारोबार लेके बैठूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोगों का छोड़ दो यार। लोग तो टाटा बिरला का ही मजाक उड़ाते हैं। लोगों को देखोगे तो आप कभी जिंदगी नहीं गुजार सकोगे। बिल्कुल। आपको अपनी लाइफ जीना है, आपको अपनी जिंदगी जीना है। कौन क्या कहेगा ये छोड़ दो, मेरा फायदा किसमें वो करो, मेरी लाइफ किसमें बनती वो करो। और मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो हलाल रोजी के लिए इज्जत की जगह, हलाल रोजी के लिए जिल्लत की जगह खड़े रहता है, अल्लाह कयामत के दिन उसको इज्जत का ताज पहनाएगा। मत परेशान हो, बात दूर निकली। आइए, टाइम की किल्लत है, उसी पर आते हैं। जनाब अबू तालिब अपने भतीजे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और कहा, भतीजे शहजादे, तुमको खदीजा का माल लेके जाना है। यही बात चली थी। जी जी बिल्कुल। भूल तो नहीं गए? थोड़ा इसका ख्याल आपको रखना है, मैं इधर उधर हो जाता हूँ लेकिन आपको नहीं होना है। जी बिल्कुल। हाँ, सरकार ने मैं चचा मैं मजदूरी नहीं करता, तो चचा जानते थे भतीजे की शान को। और मैं बेटे, मैं मजदूरी की बात लेकर थोड़ी आया हूँ, मैं तो एक बेवा का सपोर्ट करने की बात कर रहा हूँ, एक बेवा की मदद करने की बात करो। लोग उसके साथ गुंडागर्दी कर जाते, माल हड़प कर जाते, तूने तो बेवा की मदद करना है। मेरे आका खुश हो गए क्योंकि बेवाओं की मदद बहुत पसंद थी, बेवाओं की मदद बहुत पसंद थी। दावा क्या किया था मैंने, मेरे आका है ही ऐसे जो देखे इश्क करने पे, जो देखे। तो सरकार ने मैं जाना कहाँ है, तो कहा जाओ खदीजा का घर फुला फुला मोहल्ले में है, जाके खदीजा से मुलाकात करो, उससे बातचीत करो, सारे मामला तय करो और फिर उसका माल लेके जाओ, एक बेवा का सपोर्ट हो जाएगा। अब सुनना, मेरे आका चले, अब सुनना सीरत के वाकयात का इतने मजमुआ मेरे अल्फाज के जामे में, मैं अपने अल्फाज के जामे में कह रहा हूँ, सुन लेना, सुनो महबूब का जिक्र, मेरे मुस्तफा करीम की बात सुनो। अल्लाह अकबर। आका चले कहाँ, पहली मर्तबा खदीजा के घर आका चले, सैयदा खदीजा के घर। अब ये खदीजा कौन सी खातून है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं इतना बता दूं बस कि सैयदा फातिमा जिसकी बेटी है वो है खदीजा, हसनैन करीमैन जिसके नवासे हैं वो है खदीजा। अब समझ लो, बेटी और नवासे जिसके ऐसे हैं वो खदीजतुल कुबरा कैसी होगी। अगर वक्त आगे रहा तो मैं बताऊंगा कि क्या शान है उनकी, लेकिन बस आज इतना। अल्लाह अकबर। आका पहली मर्तबा खदीजा के घर चले। खदीजा बयान करती है, सैयदा खदीजा कह रही है कि मेरा घर मक्के में ऐसी जगह बना हुआ था कि दरवाजा मेरा ऐसी जगह था कि सूरज निकलते वक्त या सूरज डूबते वक्त सूरज की किरणें दरवाजे से मेरे घर के अंदर नहीं आती थी। जैसे हिंदुस्तान में किसी का मकान शिमाल और जुनूब की तरफ बना हो, यानी दरवाजा या शिमाल की तरफ हो या जुनूब की तरफ हो, तो सूरज निकलते वक्त भी दरवाजे से रोशनी, सूरज की किरणें नहीं आएगी। बात समझ में आ रही कि मुश्किल हो रही है ना? ऐसे ही है ना, सूरज निकलता किधर से है? मशरिक से। डूबता किधर है? मगरिब में। अगर शिमाल और जुनूब की तरफ रुख हो तो दरवाजे का न निकलते वक्त तो सूरज की रोशनी आएगी, किरणें, न डूबते वक्त। तो खदीजा का मकान ऐसे ही था मक्के में, न सूरज निकलते वक्त सूरज की किरणें दरवाजे से आती थी ना डूबते वक्त। लेकिन खदीजा कहती है मैं दीवार की तरफ मुंह करके एक काम में मसरूफ थी एक काम में, तो मैंने देखा कि सूरज की किरणें मेरी दीवार पे पड़ गई। सूरज की किरणें मेरी दीवार पे पड़ गई। मैंने सोचा या अल्लाह, आज सूरज निकला किधर से? ये तुम लोग जो कहते हो ना सूरज किधर से निकला, तो ये बात पहले खदीजा की जुबान से निकली कि सूरज निकला किधर से? अरे रोजाना सूरज निकलता है तो मेरे दरवाजे से कभी किरणें नहीं आती घर में, लेकिन आज सूरज निकला किधर से कि मेरी दीवार पे दरवाजे से किरणें पड़ रही है। तो कहा मैं पलटी देखने के लिए कि सूरज निकला किधर से, तो सूरज नहीं था, वो तो सरापा मुजस्सम, उसने मुजस्सम एक खूबसूरत जवान था जिसके चेहरे से नूर की किरणें निकल के मेरे दरवाजे पे पड़ रही थी, मेरी दीवार पे पड़ रही थी। मैंने देखा और देखकर मेरे दिल ने कहा वल्लाह, मैंने मक्के में जिसको देखा एक जैसा किसी को नहीं देखा। उससे तेरा सा
ہے. خدیجہ کہتی ہے میں نے پوچھا کون ہے آپ؟ کچھ تو نہ کہہ سکی, کچھ تو نہ کہہ سکی, بس اتنا کہا کون ہے آپ؟ تو انہوں نے لبوں کو جنبش دی تو موتیاں جھڑنے لگے, پھول جھڑنے لگے, اور بس ہلکے میں اتنا کہا, ہلکے الفاظ میں اتنا کہا, ہلکے لہجے میں اتنا کہا میرا نام محمد ہے, مجھے میرے چچا نے بھیجا ہے. تو دیکھ کر میں حیران تھی. جب بھی کوئی معاملہ طے کرنے آتا تھا, جب بھی کوئی, اگر میرے جوان دیکھنا چاہتے کہ نبی کیسے تھے تو میں چل شیر پڑھ دیتا ہوں, اندازہ کر لو. حالانکہ راجستھان اور ایم پی اور یو پی کی زمین سے یہ آپ کی زمین ٹچ ہے تو آپ شیر سمجھو گے, اگر سمجھو گے تو سمجھ لو نبی کیسے تھے. تو میں چند شیر پڑھتا ہوں کیسے تھے. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول, دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول, دن اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہم نو پہ نئے چرخ کون پھول. اور کیا بات نظر سارا کلی جس پہ حسین اور حسن سن لے بات, میں بات مکمل کرنے لگتا ہوں. اللہ اکبر. خدیجہ کہتی ہے میں نے دیکھا سراپا, ہاں اللہ اکبر, نوری نور, نوری نور, نوری نور, نوری نور. اور میں جو بھی آتا تھا بات کرنے میں ہی ساری بات کر کے طے کرتی تھی کیونکہ وہ میرا مان لے جاتا تھا. آج کوئی ایسا آیا میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی. انہوں نے جو جو کہا میں ہاں 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 کرتی رہی اور وہ سب باتیں طے کر کے گئے. ٹھیک ہے خدیجہ, یہ ایک بیوہ کی سپورٹ کا معاملہ, سہارے کا, ہم کل تیرا مال لے کے جائیں گے. اب خدیجہ کہتی ہے وہ کیا گئے کہ میرے دل پر عشق کا نقش چھوڑ کر حضور کا یہ معجزہ ہے. جو بھی خوبصورت انسان ہے اس کی لوگ ناپاک اور نفسانی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ حضور کو جس نے بھی دیکھا وہ ناپاک اور نفسانی محبت میں مبتلا نہیں ہوا بلکہ وہ روحانی محبت کا شکار ہو. اسی لیے میرے دادا مرشد کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے, وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے آقا ایسے جو دیکھے دل سے قربان ہو جائے, عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. میرے کریم آقا کے بارے میں اب خدیجہ کہتی, خدیجہ بڑی ہوشیار چالاک اور بڑی ذہین خاتون تھی, مکے کی ملکہ تجار تھی اس زمانے, ملکہ تجار. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. کہا میسرہ دیکھ جب بھی سامان جاتا ہے کہیں تو میں تجھی کو بھیجتی ہوں نگرانی کرنے کے لیے. آج میں نے محمد کے ساتھ معاملہ طے کر لیا ہے, تو نے جانا ہے, لیکن آج تھوڑا سا خیال بدل رہا ہے. جب بھی تجھے بھیجتی تھی تو کیا کہہ کے بھیجتی تھی؟ مال پہ نظر رکھنا, سامان پہ نظر رکھنا. لیکن اے میرے میسرہ, میرے وفادار غلام, اب تو نے مال پہ اور پیسے پہ نظر نہیں رکھنا بلکہ تو نے نظر محمد پہ رکھنا ہے. ذہن دیکھو خدیجۃ الکبریٰ کا, تو نے محمد پہ نظر رکھنا. بات کیا کری؟ نظر رکھنا. اور وہ جو عیب کرے, ان میں جو عیب ہو, عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب, خامی, عیب. ان میں جو خامی ہو, ان میں جو کمی ہو, ان میں جو کمی ہو, خامی ہو, خامی کمی ہو, وہ تو نے نوٹ کرنا, وہ تو نے خامی نکالنا, خامی دیکھنا کیا خامی ہے. بھئی آگے کا اسٹیپ بڑا تھا نا تو بات ایسی ہوتی ہے. ہاں ابھی تو ان کو پتا تھوڑی تھا کہ رسول اللہ ہے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ ان کی خامی دیکھنا, ان کے عیب دیکھنا.
देखना, आके मुझे बताना, ठीक जा। अब कल आया तो काफिला चला, खदीजा का माल लेकर काफिला चला। फिर बहुत कुछ हुआ उस सफर में। अब वो सफर नहीं पड़ता, बस इतना पड़ता हो कि फिर मेरे आका वापस आए। तो जब खदीजा को पहले से कासिद ने कहा तेरा काफिला वापस आ रहा है, जितना माल ले गया था 10 गुना ज्यादा मुनाफा कमा के पहली बार आ रहा है। इतना मुनाफा कभी नहीं कमाया गया था, इतना मुनाफा लेकर के आ रहा है। तो खदीजा ने अपनी सहेली नफीसा से कहा, नफीसा चल तो सही, काफिला आ रहा है, हम छत पर चल के देखेंगे। यानी टेरिस पर चली गई और टेरिस पर बैठ गई और जाकर के देख रही थी। तो क्या मंजर देखा खदीजा ने, काफिला चल रहा था, घोड़े थे, ऊंट थे, खच्चर थे, गधे थे, तो उनके पैरों से जो धूल लग के उड़ रही थी, पूरा काफिला धूल में छुप गया था। लेकिन एक चेहरे की टिकिया उस धूप में भी चमकती, धूप में भी पैदा जाना, जगराज को ताज तो रेशम से है, तुझको शहीदों सरा जाना। अल्लाह पर धूल में भी वो चेहरा गर्द आलूद न था। अरे नादान, जब चांद और सूरज को धूल जो है मुतासिर नहीं करते, तो आफताब नबुव्वत और महताब रिसालत को धूल कैसे मुतासिर खदीजा मंजर देख रही थी कि वो धूप और धूल में भी चेहरा नजर आ रहा है। बादल साया कर रहा है, बादल साया कर रहा है, बादल साया कर रहा है। बादल क्यों साया करता था? तवज्जो करिए, क्यों करता था? नंबर 1, आशिकों ने कहा धूप से हुजूर को बचाना चाहता था, इसीलिए बादल। दूसरी बात सुन ले, दूसरी बात सुन ले। एक तो ये कि बादल धूप से बचाने के लिए साया करता था। दूसरी बात ये थी कि सूरज और महबूब के दरमियान वो पर्दा बन जाता था, इसलिए कि तू छुप जा, इनके चेहरे की तू ताव नहीं ला सकता। इसलिए भाई आशिकों को जो महबूब की अदाओं को जो सोचेंगे तो नजर आएगा ना। बहरहाल खदीजा ने देखा रोशनी, चेहरे की रानाइयां, नफीसा ने कहा देख वो चेहरा नजर आ रहा है वो चेहरा। अब सुनिए, मैसरा घोड़ा दौड़ाते हुए, सवारी दौड़ाते हुए आया, ऊपर चढ़ा। मालका, ओ मालका सुन मुबारक, 10 गुना ज्यादा मुनाफा, ये मुनाफा। खदीजा ने मैसरा वाला चुप, मैंने तुझे कहा था माल पे और पैसे पे ध्यान नहीं देना। मुझे यकीन है कि जिस बरकत वाले ईमानदार को मैंने भेजा है मुनाफा तो होना ही है। अभी पैसे की बात मत कर। अब मालिका और गुलाम के दरमियान अकेले में बात हो रही है और उसको सुन कौन रही है? सहेली नफीसा, जो हुजूर की रिश्ते में फूफी भी लगती है, वो सुन रही है। अब मैसरा से खदीजा कहती है मैंने कहा था ना मोहम्मद का ख्याल करना, उनके ऐब देखना, बता मोहम्मद के ऐब क्या है। अब मैसरा बोला, वो मुसलमान नहीं हुआ था क्योंकि अभी हुजूर ने ऐलान किया ही नहीं था। अब मैसरा से पूछा क्या ऐब देखा मोहम्मद के, तो मैसरा कहता है वो कभी झूठ नहीं बोलते। खदीजा पूछ रही है मोहम्मद का ऐब क्या देखा सफर में, इसलिए कि सफर में आदमी खुलता है, स्टेज पे पता नहीं चलता कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है। यहाँ तो सभी अदब से बैठते हैं, मस्जिद में पता नहीं चलता कौन अच्छा है कौन बुरा है, वहाँ सब अदब से बैठते हैं। मजार के अंदर पता नहीं चलता कौन कितना अच्छा है कौन बुरा है, वहाँ तो सब अदब से बैठते हैं। सफर करो तो पता चले कौन कितना अच्छा है कौन कितना बुरा है, पड़ोस में रहो तो पता चले कौन कितना अच्छा है कौन बुरा है। अल्लाह अकबर, लेन देन करके देखो तो पता चलता है कौन कितना अच्छा है कौन बुरा है। ये 3 बातों में तो मैं सारा सफर भी करके आया था और लेन देन भी देख चुका था, हुजूर के साथ रह भी चुका था महीनों। वो पूछा मोहम्मद के अच्छा ये बार बार मैं मोहम्मद कहूंगा, हालांकि मेरी अकीदत को गवारा नहीं। जब भी नाम रसूल आए तो अलकाब और आदाब के साथ लिया जाए, लेकिन उस वक्त खदीजा ने अलकाब आदाब के साथ नहीं लिया था ना, क्योंकि वो तो आए पूछ रही थी ना, तो इसीलिए पूरा बैकग्राउंड आपके समझ में, इसलिए उन्होंने जो कहा तो मैं वही कहूंगा, लेकिन मेरी अकीदत को गवारा नहीं। अगर मैं अलकाब लगा दूं तो बैकग्राउंड आपके समझ में नहीं आएगा। खदीजा ने कहा मैसरा मोहम्मद की ऐब क्या है। अब वो बोलने
बोलने लगा, वो तो कभी झूठ नहीं बोलते, मैंने कभी झूठ नहीं सुना। कहा मोहम्मद का ऐब कुछ नहीं, ऐब क्या है? कहा जिस जमीन पे कदम रखते सूखी जमीन हरी हो जाती पूछती हूँ मैं इसरा ऐब क्या है? कहा उनके पसीने में कभी बदबू नहीं आती, उनके पसीने में खुशबू आती है, गलियां महकती है उनके पसीने से। कहा पता है, कहा वो चलते हैं तो उनका जमीन पे साया नहीं पड़ता। कहा पता है, कहा जानवर उनको सजदा करते हैं। कहा पता है, दरख्त उनको सलाम करते हैं। कहा पता है, कहा पत्थर उनको सलाम करते हैं। कहा पता है, कहा कि जब सब लोग दरख्त के नीचे जाके बैठ जाते थे और बैठने को जगह नहीं रहती थी और आखिरी में मोहम्मद आते थे तो दरख्त की टहनियां बढ़ करके उनके सर पे साया कर देती। पता है नहीं हुए, कहा पता है, कहा वो किसी से झगड़ा भी नहीं करते। कहा पता है वो झूठी कसम नहीं खाते। कहा पता है, कहा वो दयानतदार है। पता अमीन है। पता सादिक है, सच्चे है। अल्लाह अकबर। कहा पता है, कहा वो मुस्कुराते हैं तो रातें रोशन हो जाती है। पता है, अल्लाह अकबर। कहा वो कभी किसी पे जुल्म नहीं करते। कहा पता है, तो कहा अल्लाह अकबर, वो जब चलते हैं तो मूसी जानवर अपना रास्ता बदलते हैं। पता है, कहा लोग उनको देखते हैं तो उनका इज्जत एहतराम के साथ उनके आगे सर झुका देते हैं। पता है सूखे कुएं के करीब जाते तो कुएं पानी से भर जाते। पता है जिस कुएं में लुआब डाला वो मीठा हो जाता है। अरे कहा है पता है, उनका तूने क्या देखा? उनके बदन पे मक्खी नहीं बैठती, कभी मैंने मक्खी को बैठते नहीं देखा। कहा है पता है, पता है। तब मैसरा ने कहा मालिका, मैंने तेरा नमक खाया है, मैं तेरा नमक हलाल हूँ। अगर तू मेरे एक हाथ में चांद ला के रख दे और दूसरे हाथ में सूरज ला के रख दे और फिर मुझसे बोल कि मोहम्मद का है पता, तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहूंगा ये वो हस्ती है जिसको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा। जिंदाबाद माशाअल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस बात इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए सुन लें, मैं सरा मुसलमान नहीं हुआ था लेकिन सच्चाई से दिखा। तो कहने लगा वो कमाल है हुस्न मैं सरा तो ये शेर नहीं पढ़ा था लेकिन मफहूम तो ये था। बेशक बेशक कमाल है हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करो तेरे नाम पे जा फिदा, मैं बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बोलो मुसलमानों, ऐसा नबी खुदा ने दिया। अब बात समेट रहा हूं, दूसरे पहलू पे आता हूं। अभी खौफे खुदा पे आज गुफ्तगू नहीं हो सकेगी, फिर किसी मौके से, लेकिन तवज्जो कर लें, बात पूरी करूं ना वरना तकरीर या दूरी रह जाएगी। सही सही सुनेंगे ना, करूं ना बात पूरी। टाइम खत्म हो गया लेकिन कर देता हूं बात पूरी। ऐसा रसूल, तवज्जो करना, ऐसा रसूल जगह बड़ी नवाज, ऐसा रसूल काफिर भी जिसको देख के कहेंगे इसमें कोई ऐब, इनमें कोई ऐब। अब आप कहेंगे मौलाना सैयद साहब हम तुमसे इश्क करते हैं ना? तो बेशक बेशक बेशक। अरे क्या हुआ? आप याद रखना धौलपुर वालों, आप कितना चिल्लम चाट करोगे अगर आप सोचते हो कि मैं आपको डांटूंगा, मैं आपके नाराज होऊंगा,
آپ میرے صبر کا امتحان لیں، میں حسنی ہوں، بے شک، سبحان اللہ، آپ لوگ میرے صبر کا امتحان لیتے ہیں، میں کبھی مائک پہ آن مائک ناراض نہیں ہوں۔ بے شک، بے لوگ شک، میرے جو وہ ہاتھ کو ناخنوں سے چھلنی کر دیتے ہیں، چبا دیتے نا، میرے کپڑے کھینچ لیتے ہیں، میرا ماما لوٹ لے جاتے ہیں، ابھی بھی مجمع میں کبھی لوگوں پہ ناراض نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، آپ یہ نہ سمجھتے کہ میں آپ پہ ناراض ہوں گا، بے شک، بے شک، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ذکر جس کا ہو رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو۔ اس لیے تھوڑا اب اسٹیج والے میں بھی کوئی بولتا ہے کہ ادھر ادھر بیٹھ، اگر اہل ممبر جو ہاں اہل ممبر اگر اتنی شرافت کریں گے تو قوم کی شرافت کا حال کیا ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ رسول اللہ کے ذکر کی شرافت کا خیال کریں سب لوگ۔ بے شک، بات اختتام کو جاری تھی، تھوڑا سن لیں۔ میں نے تو یہ تمہید کے طور پہ کہا، میں نے کہا تھا کہ عشق کرو گے تو ولی بنو گے، عشق رسول اور خوف خدا ولی بناتا ہے۔ اتنے اچھے رسول ہیں، اتنے عظیم رسول ہیں، کافر بھی دیکھے تو کیا کہے ان میں کوئی عیب نہیں، حسن والے، جمال والے، کمال والے، اخلاق والے، کردار والے، ہے نا، کوئی ان جیسا ہے، ان جیسا ہے۔ اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، نہ یوسف کو، نہ موسیٰ کو، نہ عیسیٰ کو، نہ داؤد کو، نہ ایوب کو۔ انبیاء ان کی طرح نہیں ہے، کوئی ان کی طرح نہیں۔ بے شک، آپ کہیں گے مولانا یا سید صاحب آپ اتنی لمبی تقریر کر چکے، کیا ہم حضور سے عشق نہیں کرتے؟ ہم حضور سے عشق نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں ایک واقعہ پیش کروں گا، ایک حدیث، میں نہیں کہوں گا، مجھے کیا حق پہنچتا ہے، میں تو تم لوگ سب سے زیادہ گنہگار ہوں، میں کسی کو کیوں کہوں کہ تو عشق نہیں کرتا، تو نہیں کرتا، تو نہیں کرتا۔ ایک حدیث پڑھوں گا، اگر اجازت دو تو پڑھوں گا، تھوڑی سی لمبی ہے تھوڑی، مفہوم کے طور پہ پڑھوں گا۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے، یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کتاب التوابین میں، کتاب التوابین میں حدیث لکھی ہے۔ آج آپ کو خود طے کرنا ہے، آج آپ کو خود طے کرنا ہے کہ آپ رسول اللہ سے عشق کرتے ہو یا چیٹنگ کرتے ہو، آپ کو خود طے کرنا ہے، خود طے کریں، میں نے نہیں کہنا کچھ، اس لیے کہ دل کا حال یا آپ خود جانتے ہیں یا آپ کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کے دل پر حکم لگانے والا؟ میں تو آپ کے ظاہر پر بھی حکم لگانے والا آدمی نہیں، کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں، میں صوفیوں کا سگے دن ہوں، ان کا غلام ہوں، میں فتوے والا آدمی نہیں، یہ منصب مفتیوں کا ہے۔ میں آپ کے ظاہر پہ، جب ظاہر پہ فتوہ لگا نہیں سکتا تو میں آپ کے باطن پہ کیوں فتوہ لگاؤں گا؟ لیکن درد دل کے طور پہ ایک حدیث روایت کو پڑھتا ہوں، اس کا مفہوم پھر آپ خود فیصلہ کر۔ میری بہنوں کی بھی توجہ ہے کہ آپ اور ہم حضور سے عشق کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں۔ پہلی بات، ایک بات بتا دوں، ہم نے عشق کی بہت بات کی، ابھی نعرے لگ رہے تھے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب یہ نعرہ لگتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لیکن کبھی سوچا میرے بھائی لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ کتنے بڑا جھوٹ بول رہے ہو، کس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو؟ کہاں حاضر ہو؟ نعرہ لگانے پہ منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن کس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو؟ رسول اللہ فرمائے نماز کے لیے آ، کہتے ہو حاضر ہوں اور وہاں سے غیر حاضر ہوں۔ رسول اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ داڑھی رکھ، وہاں سے غیر حاضر ہو۔ رسول اللہ فرما رہے زکات دے، وہاں سے غیر حاضر ہو۔ ماں باپ کی فرما برداری کر، وہاں سے غیر حاضر ہو۔ بیوی کے حقوق ادا کر، وہاں سے غیر حاضر ہو۔ ہر جگہ غیر حاضر ہو کے جلسے میں چلاتے ہو لبیک یا رسول اللہ۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے حضور کو کیا منہ دکھائے گی یہ قوم۔ عاشقان رسول تو وہ ہوتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے آواز دی، توجہ کرنا، جب اللہ کے رسول نے آواز دی تو پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر، پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر دولا
پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر دولہا سر کٹانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. عاشق یہ تھے، عاشقان مصطفیٰ یہ تھے. لیکن آؤ جو روایت پڑھنے چلا ہوں کہ عاشق ہم ہیں یا چیٹنگ کرتے ہیں. کتاب التوابین میں ایک روایت ہے، ایک جوان، میں نے کئی جگہ اس کو پڑھا، آج آپ کا شوق دیکھ کے مجھے اچھا لگ رہا ہے. واقعی آپ لوگ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، آپ بہت اچھی لوگ، آپ واقعی حضور کے سچے وفادار ہیں. لیکن آپ سیکھ لیں وفاداری کا ہنر. تو میں نے کہی آپ کی آج پڑھتا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، بہنوں کی بھی جوانوں کی خاص توجہ. صاحب کتاب التوابین لکھتے ہیں کہ ایک جوان تھا، اور وہ جوان حضور کو دیکھتا ہے، چھوٹی عمر کا جوان، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھتا ہے، اور چہرہ دیکھ کر حضور کا شیدائی ہو جاتا ہے، حضور کا عاشق ہو جاتا ہے. جب حضور کا عاشق ہو گیا، حضور کے پاس آ کے وہ جوان کہتا ہے آقا دل آپ کو دے دیا ہوں، کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے. اللہ کے رسول اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور اس کو اسلام میں داخل کر لیتے ہیں. اس نوجوان کا نام تھا عبد الرحمن. عبد الرحمن نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. سرکار نے فرمایا جوان اب گھر جاؤ، اب گھر جا کر اپنے کام دھندے سے لگو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سے اتنا عشق ہو گیا ہے کہ اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اب آپ مجھے کوئی کام دے دیں، میں گھر پہ بہت تھوڑے وقت کے لیے جایا کروں گا، باقی آپ کے نوکری کروں گا، آپ کے کام کاج میں سنبھالوں گا. اللہ اکبر. رسول اللہ کی چوکھٹ میں ان کو بٹھا دیا گیا. اب جانوروں کی دیکھ بھال، کام کاج، اس کو بلانا، اس کو بھجانا، یہ کرنا، وہ کرنا، عبد الرحمن کو سونپ دیا گیا. ایک دن عبد الرحمن کو میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ. عبد الرحمن چلے، عبد الرحمن چلے، اور چلنے کے بعد اللہ اکبر، بلکہ اللہ اکبر، ابن عبد الرحمن چلے، اور چلنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر گئے. راستے میں کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے، توجہ کریں، راستے میں چلتے ہوئے کیا دیکھا، ایک عورت ہے جو غسل کر رہی ہے، ایک عورت ہے جو غسل کر رہی ہے. اس پر ان کی نظر پڑ گئی، ابن عبد الرحمن کی اچانک غسل کرنے والی عورت پر نظر پڑ گئی. اب میں اس پہ کیا تفصیل بیان کروں، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نہا رہا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی، اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن نظر پڑ گئی، جیسے نظر پڑی نا، جیسے نظر پڑی اس عورت کے نہاتے ہوئے بدن پہ نظر پڑی. ابن عبد الرحمن حضور کے تربیت یافتہ سے تربیت ہو رہی تھی، فوراً نظر پھیر، نظر پڑی فوراً نظر پھیر، جان بوجھ کے نظر ڈالی نہیں، توجہ کر، جان بوجھ کے نظر ڈالی نہیں، نظر پڑ گئی، نظر پھیر لی. اب نظر اگر پڑ گئی، نظر پھیر لی تو یہ کوئی پاپ تو نہیں ہے، پاپ جرم نہیں، نظر کہیں پڑ جاتی. اگر پڑ گئی آدمی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اگر پڑ گئی آدمی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ تو مجرم ہے، تو پاپی ہے. لیکن پڑ گئی اور فوراً پھیر لیا، اب تو وہ ثواب کمائے گا. بلکہ کیا اس کے لیے ثواب کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں عورت پر نظر پڑے اور بندہ یہ سوچ کر کے نظر ہٹا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخلہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. بے حساب جنت نعیم میں اس کا داخلہ ہوگا صرف عورت سے نظر ہٹانے پر. اللہ اکبر. لیکن اس جوان کی ابن عبد الرحمن کی نظر اچانک غسل کرتی ہوئی نہاتی ہوئی عورت پہ پڑ گئی، فوراً نظر پھیر لی. نظر پھیرنا تھا، اچانک دل میں خیال آیا عاشق. اب عاشق کی داستان سنو. عاشق کسے کہتے ہیں، مالک و مولا کا ذکر سن لیا، اب عاشق کا ذکر سنو. عاشق کیسے ہوتے ہیں، جیسے نظر پھیری دل میں خیال آیا ابن عبد الرحمن تو نے کیا پاپ کیا، تو نے کیا گناہ کیا. حالانکہ میں واضح کر چکا ہوں کہ وہ کوئی گناہ نہ تھا، لیکن جن کے رتبے ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جن کی سوچ میں عشق ہوتا ہے پھر ان کی سوچ الگ ہوتی ہے، وہ ہماری طرح گندی سوچ کے لوگ نہیں ہوتے. اللہ اکبر. ابن عبد الرحمن فوراً نظر ہٹا لی. نظر ہٹانے کے بعد دل میں خیال آیا ابن عبد الرحمن یہ تو نے کیا کیا، جن آنکھوں سے تو رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے ایک نہاتی
करती हुई गुस्ल करने वाली औरत के बदन पे नजर डाल दी, फौरन कांप गए, तड़प गए। और अब आशिक की सोच सुनो, तड़प करके क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, अगर मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को हो गई तो मेरे महबूब का दिल दुख जाएगा, मेरे महबूब के दिल को तकलीफ हो जाएगी। बस फौरन नजर आसमान की तरफ उठाई, अर्ज़ की मौला मेरा गुनाह माफ कर दे, मैंने जो गुनाह किया मेरा गुनाह माफ कर दे, और अगर माफी नहीं हो सकती मेरे अल्लाह तो तू जो चाहे इस पर मुझे सजा दे दे, लेकिन मौला मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, मेरे इस गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, वरना उनका दिल दुख जाएगा, उनके दिल को तकलीफ पहुंच जाएगी। अल्लाह अकबर। अब इब्न अब्दुर रहमान न घर गए, न रसूल अल्लाह की बारगाह में गए, न उस सहाबी के घर गए, बल्कि सब छोड़ छाड़ कर इब्न अब्दुर रहमान जंगल में चले गए। रोते हैं, सिर्फ रोते हैं। क्यों रो रहे हैं, मौला क्या मुझे माफ कर दे या मेरे गुनाह की सजा दे दे, मौला मुझे सजा उठाना तो गवारा है, मैं सजा तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे महबूब का दिल दुखाना मुझे गवारा नहीं, मेरे हबीब का दिल दुखाना गवारा नहीं। मेरे अल्लाह ये गुनाह की खबर मेरे महबूब तक मत पहुंचने देना, वरना उनका दिल दुखेगा। अल्लाह अकबर। गार में बैठकर रोते 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 एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन इसी हाल में गुजर गए। न खाना, न पीना, न सोना, एक ही फिक्र है, या मुझे माफ कर दे या सजा दे दी जाए, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को न होने दिया जाए। एक दिन मेरे आका ने हजरत फारूक आजम और सलमान फारसी से कहा, रोजाना पूछते थे लोगों से क्या बात है, इब्न अब्दुर रहमान नहीं दिखता, इब्न अब्दुर रहमान नजर नहीं आता। लोग कहते आका पता नहीं कहाँ चला गया, घर पे भी नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो 40 दिन के बाद मेरे आका ने फरमाया, ऐ उमर और ऐ सलमान फारसी, तुम दोनों जाओ और मेरा इब्न अब्दुर रहमान, मेरा इब्न अब्दुर रहमान, हुजूर आशिकों को यूं कहते हैं मेरा, हाँ तुम लाख अपने आप को हुजूर का कहो कि हम रसूलुल्लाह के, बात नहीं बनती जब तक रसूलुल्लाह अपना न कहे। हाँ अल्लाह अकबर। जो पिया मन भाए वही सुहागन कहलाए, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरा इब्न अब्दुर रहमान जंगल में रो रहा है, उसको बुलाकर मेरे पास लाओ, उसको मेरे पास लाओ। इब्न अब्दुर रहमान को ढूंढने के लिए फारूक आजम और सलमान फारसी दोनों गए। जंगल में देखा एक चरवाहा बकरियां लेके खड़ा है। चरवाहे से कहा, ए चरवाहे क्या तूने हमारे भाई इब्न अब्दुर रहमान को देखा है? वो चरवाहा कहता है मैं कोई इब्न अब्दुर रहमान को नहीं पहचानता, मैं कोई तुम्हारे भाई को नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ एक ऐसा जवान इस जंगल में आया है, 1 महीने से ज्यादा हो गया, उसको किसी से इश्क हो गया है। एक ऐसा जवान आया है, देखो जंगल का चरवाहा कह रहा है, एक ऐसा जवान आया जंगल में जिसको किसी से इश्क हो गया है और उससे कोई गलती हो गई है, वो अपना गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है, इसीलिए वो जंगल में है। हजरत फारूक आजम ने कहा सलमान मिल गया अपना भाई इब्न अब्दुर रहमान। वो कहा चरवाहे बताना वो कहाँ है? कहा इसे नहीं बता सकता मैं, क्योंकि जब रात होती है तो वो जंगल में चिल्लाता है, रोता है, बाल पकड़ के आंसू बहाता है और वो इतना कहता है मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों पैदा हुआ, मुझसे क्या खता हो गई है, कितना बड़ा गुनाह हो गया है कि मेरे महबूब तक मेरे गुनाह की खबर न पहुंचने पाए, या तो मुझे माफ कर दिया जाए या तो मुझे सजा दे दी जाए, लेकिन मेरे महबूब का दिल न दुखे, मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर न होने पाए। अल्लाह अकबर। फारूक आजम और सलमान फारसी ने चरवाहे ने कहा जब रात होगी तब वो गार से निकलेगा, तब उसका रोना और उसकी आंखों का तुम देख लेना। रात का इंतजार दोनों करने लगे। जब रात तारीख हो गई, रात में सिया जुल्फें जंगल पर बिखेर दी और पूरा जंगल जो है साए साए करने लगा। अचानक जंगल के सन्नाटे में किसी के रोने की आवाज बुलंद हुई तो ये दोनों दौड़ करके पहुंचे और इब्न अब्दुर रहमान को फारूक आजम ने सीने से लगा लिया और कहा इब्न अब्दुर रहमान क्या हाल बना रखा है, चल तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, चल तुझे अल्लाह के रसूल बुलाते हैं। रसूलुल्लाह का नाम जैसे ही कानों में आया इब्न अब्दुर रहमान ने पहला सवाल किया, उमर तुम सच्चे हो मगर सच सच बताना क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को हो गई, क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे
महबूब हो गई, मेरे आका को मेरे गुनाह का पता चल गया। फारूक आजम ने कहा, इब्न अब्दुल रहमान मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस आका ने मुझे भेजा है, चलो हुजूर के पास चलो, आका तुम्हें बुला रहे हैं। तो इब्न अब्दुल रहमान कहते उमर आका बुला रहे हैं, मैं इनकार नहीं करता, मैं चलूंगा, लेकिन मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया कि मैं अपने आका का सामना नहीं कर सकता, मैं अपने आका का सामना नहीं कर सकता, इसलिए एक एहसान करो, चलूंगा जरूर, मगर उस वक्त पे लेकर के चलना जब आका नमाज की हालत में रहेगी, हाजिरी भी हो जाएगी, सामना भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं गुनाह करके अपने आका का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। फारूक आजम कहते हैं, उमर बताओ ना, क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे आका को हो गई, मैं किस तरह सामना करूंगा आका से। बस यहाँ रुक कर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, आगे बढ़ने से पहले मेरी कौम के जवानों, जब हमारा मुक़र्रिर, हमारे उलमा, हमारे पीर जब कहते हैं ना कि कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, हम नारा लगाते हैं, खुश होते हैं, मचलते हैं। जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही, कितने पाप कर रहे हो, कितने पाप, और पाप कर करके, गुनाह कर करके रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे हो, दाढ़ियां मुड़ा के गटर में फेंक के हुजूर का दिल दुखा रहे हो, झूठ बोल के रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे हो, औरतों से नाजायज ताल्लुकात करके रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे हो, ज़िना के अड्डे पे जाके, शराब के अड्डे पे जाके, गंदी फिल्में देख के। इब्न अब्दुल रहमान की तो नजर पड़ गई थी मेरे भाई, यहाँ तो पूरी पूरी रात रंगी फिल्में देखकर, नरम नरम गद्दों पे लेट के गंदी बिली फिल्में देखी जाती है और पाप की फिल्में देखी जाती है। सोचो सोचो, जब कब्र में मर के पड़े रहोगे, रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे, आका आएंगे और आकर के हुजूर से मुलाकात होगी, हुजूर फरमाएंगे, ओ झूठे, ओ मुनाफिक, ओ कज़्ज़ाब, मेरा आशिक कहलाकर तू नंगी औरतों की फिल्में देखता था, तू मस्जिदों को वीरान करता था, तू सूद के हराम धंधे करता था, तू माँ बाप को आंखें निकाल के देखता था, इश्क का ढिंडोरा पीटा था झूठे, और अल्लाह न करे कब्र से नाराज होकर हुजूर मुंह फेर के पलट करके चले जाए। जब कोई साथ न आया तो अल्लाह के रसूल कब्र में साथ आए, जब कोई मददगार न आया तो हुजूर मदद के लिए आए। अब अगर हुजूर भी मुंह फेर के जाएंगे, किसको मनाओगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगी। आज मुझ जैसे दिल जले की रोती हुई तकरीर सुन के तुम मुस्कुरा दो, हमारी तकरीरों को जो नाम देना चाहो दे लो, लेकिन कब्र का ख्याल करो। कैसे सामना करोगे उनका, कैसे सामना करोगे। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा, इकबाल तू बड़ा आशिक रसूल बनता है, जर्मनी जाता है, अमेरिका जाता है, यूरोपीय ममालिक जाता है, और तू मदीने नहीं जाता, मदीने मुनव्वरा नहीं जाता। इकबाल ने कहा था, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, जा सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के नहीं जाता। तो क्यों नहीं जाता है? तो कहा कि क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊंगा, क्या मुंह लेके जाऊंगा। मेरे एक आलिम ने, एक बहुत बड़े आलिम ने मुझे बताया था कि हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम ने 2 मरतबा हज किया और 2 बार मदीना शरीफ गए और 1-1 महीने से ज्यादा क़याम किया। जब किसी ने कहा, हजरत रसूलुल्लाह की जालियां सुनहरी कितनी नूरानी नूरानी लगती है ना, तो मुफ्ती आजम ने कहा, हाँ हाँ हमने भी सुना है कि हुजूर की जालियां बहुत नूरानी नूरानी। तो किसी ने कहा, हजरत आप तो 2 बार गए और 1 महीने से ज्यादा रुके आप, और आप कहते हैं हमने भी सुना है। तो मुफ्ती आजम कहते हैं, सुनहरी जालियों के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि गुनहगार मुंह लेकर के हुजूर को कैसे दिखाता। यहाँ पीर नसीरुद्दीन नसीर का शेर याद आता है, शर्मैसियों से नहीं सामने जाया जाता, शर्मैसियों से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है। तेरे शहर में आए हुए कितने बेशर्म है हम लोग, कितने बेगैरत है हम लोग, गुनाह कर करके
रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे और क्या मुंह लेकर उनको दिखाएंगे, क्या मुंह देकर उनके सामने जाएंगे, महशर में क्या मुंह लेकर जाएंगे, कब्र में क्या मुंह लेकर जाएंगे। मेरे भाइयों, अपने आप पे रहम कर लो, अपने आप पे तरस कर लो। ये मेरा तुम्हारा जिस्म जहन्नम का अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये हमारा तुम्हारा जिस्म जो चूटियों का डंक बर्दाश्त नहीं कर पाता, मेरे भाई ये जहन्नम के बिच्छुओं का डंक कैसे बर्दाश्त करेगा, ये जहन्नम के सांपों का डंक कैसे बर्दाश्त करेगा। और नरम नरम बिस्तर पे सोकर फजर की नमाज तर्क करके अपने आप को जहन्नमी बनाने वालों, वो दाढ़ियां मुड़ाकर, औरतों पे गंदी नजरें डालकर, हराम कारोबार करके, इस्लाम के खिलाफ जिंदगी गुजार के, मोबाइल में अपना वक्त बर्बाद करके अपने आप को जहन्नमी बनाने वाले मेरे भाई, अपने आप पे रहम कर ले। जब हम मई की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करेंगे। अपने गीजर का किया हुआ गर्म पानी अगर हमारे बदन पे आ जाए तो छाला पड़ जाता है। जब अपने गीजर का गर्म पानी हम पर छाला डालता है तो जहन्नम की आग हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। ये मेरी माएं और बहनें बेपर्दा घूमती है, मर्दों से बातें करती है, मर्दों से बेपर्दा मुलाकातें करती है। बताओ ये बहनें इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर, कोई डांट दे तो इनके आंसू निकल आते हैं। बताओ ये लोग जहन्नम का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। अपने आप पे जुल्म मत करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब को खेल तमाशा मत समझो, उसके गजब को दावत मत दो। एक वली की चौखट पे आए हो, सच्चे आशिक बन के जाओ। आशिक वो है जो महबूब का दिल नहीं दुखाता। फारूक आजम फरमाते हैं, फारूक आजम फरमाते हैं, लोग छोटे और बड़े गुनाह की बात करते हैं, मुझे तो इतना समझता है कि कैसा भी गुनाह करो, छोटा करो या बड़ा करो, उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है। बस जो गुनाह करोगे हुजूर का दिल दुखेगा, हुजूर के दिल को तकलीफ होगी। अब बताओ कैसे आशिक हो, कैसे तकलीफ पहुंचाते हुजूर को। तो बात खत्म करते हुए करूं, क्या रोना रोना, कितना रोना रोना। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी, समझदार के लिए इशारा काफी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इब्न अब्दुल रहमान कहते हैं, उमर मैं सामना नहीं कर सकता मेरे आका का, मुझे उस वक्त लेके चलना जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे हो। फजर का इंतजार होने लगा, सुबह का इंतजार होने लगा। फजर का वक्त आया, दोनों ने पकड़ा, दोनों तरफ से इब्न अब्दुल रहमान को लेकर गए। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे फजर की। जैसे किरत की कुरान की तिलावत की रसूलुल्लाह की आवाज इब्न अब्दुल रहमान के कान में पड़ी, इस खौफ से कि क्या मुंह दिखाऊंगा, चीख मार के बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। चीख मारी, बेहोश हो। नमाज हुई, सरकार ने पूछा, उमर, सलमान, मेरा इब्न अब्दुल रहमान कहाँ गया, कहाँ है? आका वो बेहोश हो गए, ये देखो पड़ा हुआ। सरकार आए, उनका हाथ पकड़ा, चेहरे पे ठंडे ठंडे। मेरे आका के हाथ बर्फ से ज्यादा ठंडे रहते थे, रेशम से ज्यादा नरम थे, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार थे। चेहरे पे हाथ फेरा, आंखें खोली, जैसे हुजूर पे नजर पड़ी, पहला सवाल, आका मेरे गुनाह की खबर आपको तो नहीं पहुंची ना, मेरी वजह से आपका दिल तो नहीं दुखा ना आका, लेकिन वो तो मेरे आका आका है, सबका दिल रखते हैं, सबको निभाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, इब्न अब्दुल रहमान क्या हाल बना रखा है तूने? अर्ज़ किया, आका मेरे जिस्म में खून नहीं है, चूटियां चल रही है अंदर, ऐसा लगता है क्योंकि मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है। आका आपको पता तो नहीं चलता, आपका दिल तो नहीं दुखाना आका, बस इतना कहते। मेरे आका ने फरमाया, इब्न अब्दुल रहमान मैं तुझे एक ऐसी आयत बताता हूँ और ऐसी आयत तुझे पढ़ाता हूँ, अगर कोई बंदा इस आयत को सच्चे दिल से एक बार पढ़ ले तो उससे कितना भी गुनाह अल्लाह सब माफ कर, हर गुनाह माफ हो जाएगा इस आयत की बरकत से। इब्न अब्दुल रहमान पढ़, मैं तुझे पढ़ाता हूँ, पढ़, आप भी मेरे साथ पढ़ लो, मैं भी पढ़, आप भी पढ़ लो। मेरे आका ने फरमाया, ये आयत जो पढ़ता है उसके सब गुनाह माफ होते। हजरत शरफ अब्दाल की चौखट पर आए, अल्लाह आज हम सबको माफ कर दे, अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत कर, हम सबसे अल्लाह राज़ी हो जाए। हमने बहुत दिल दुखाया रसूलुल्लाह के। मैं तो सोचता हूँ रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो माँ का दिल दुखाए मरते वक्त उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आता, हमने तो अल्लाह के नबी का दिल दुखाया, हमारा क्या होगा? बस वो करम कर दे तो बेड़ा पार है, वरना हमने तो तबाही कर ली, अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अपनी आखिरत तबाह कर दी, अपनी जिंदगी गुनाहों में गंवा दी, गुनाहों में गुजार दी। एहसास भी नहीं, हंस रहे, खिलखिला रहे, खा रहे, पी रहे, एहसास ही नहीं
कि हुजूर के दिल का हमने हाल क्या किया, हुजूर को तकलीफ कितनी पहुंचाई। आका फरमाते इब्ने अब्दुल रहमान हाथ पकड़, पढ़, मैं तुझे पढ़ाता हूँ, जो ये आयत पढ़ेगा अल्लाह उसको बख्श देगा। पढ़, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आका ने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा, इब्ने अब्दुल रहमान सब माफ, मगर मेरे आका आपका दिल तो नहीं दुखा, ये कह के रोने लगी। आका ने मैं ले जाओ इसको, इसके घर पहुंचा दो। अभी साहबा ले गए, घर पहुंचा दिया। घर पड़े रहे, बस एक ही बात, रोना रोना, अल्लाह मुझे माफ कर या बख्श दे, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना, वरना उनका दिल दुखेगा। फिर 8 दिन हो गए, न खाते न पीते न सो, रोना 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 रोना, महबूब का दिल न दुखे, महबूब का दिल न दुखे। फिर क्या हुआ पता है? आका ने 8 दिन के बाद कहा, कहाँ इब्ने अब्दुल रहमान का हुजूर वो घर से नहीं निकलता। सलमान फारसी ने कहा, आका वो मर जाएगा, अब वो जिंदा नहीं उठेगा, न खाता है न पीता है न सोता है, बता नहीं, बस एक ही बात करता है, आका का दिल न दुखे, हुजूर को गुनाह की खबर न हो जाए। आका बस वो आप ही की फिक्र करता है, रोता रहता है, हुजूर क्या हो गया उससे? अब वो तो मेरे आका है ना, कभी किसी का ऐब नहीं खोलते। पर चलो उसके घर चलते, आज हम उसके घर जाएंगे और उसको खुश कर देंगे, आज उसका सब गम दूर कर देंगे। आका उसके घर आए, पड़े हुए थे इब्ने अब्दुल रहमान। आका घर आए, आके बिस्तर पे बैठ गए, बिस्तर पे, ताकि ये बताएं कि मैं तुझसे नाराज नहीं। बिस्तर पे बैठ गए। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा चाहिए, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई, और आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई। बिस्तर पे बैठ गए, बिस्तर पे बैठ के इब्ने अब्दुल रहमान से कहा, क्या हुआ हुजूर, आपको खबर तो नहीं हुई ना मेरे गुनाह, आपका दिल तो नहीं? ये कह के रोने लगे। सरकार ने उनका सर उठाया, सर उठा के अपनी गोद में रखा, पेशानी पे हाथ फेर, ये बताने के लिए कि नाराज दिल नहीं दुखा। तो उन्होंने क्या किया, जब आका हाथ फेर रहे थे ना, धीरे धीरे सर खसकाया, जमीन पे डाल दिया। अरे अरे हुजूर की जानों पे सर का आना कितनी बड़ी सआदत की बात। अरे हुजूर की नालैन सर पे आ जाए तो कहने वाले कह रहे हैं कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। और यहाँ हुजूर ने अपनी मांडी पे अपने जानों पे सर रखा, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे, आशिकों का मिजाज ही होता है, धीरे धीरे खिसका लिया, जमीन पे गिर गया। फिर हुजूर ने लिया, फिर रखा, फिर खिसका के जमीन पे गिरा लिया। पूछा, इब्ने अब्दुल रहमान, ये बार बार तू सर यहाँ से क्यों हटा लेता है? रो के कहते, आका मेरे सर में जो 2 आंखें हैं ना, वो बड़ी पापी है, उससे गुनाह हो गया, और ये पापी आंख जिस सर में लगी हो, वो सर आपकी पाकीज़ा गोद में रहने के काबिल नहीं। आका अलैहिस्सलाम सर उठा के रखते, वो नीचे डालते, मुहीब और महबूब में यही अदाएं हो रही थी। अल्लाह को प्यार आ गया, अल्लाह ने जिब्रील को वही लेकर भेजा, जिब्रील जा मेरे महबूब को सलाम कहे और बता कि महबूब ये इब्ने अब्दुल रहमान तुझसे इतना इश्क करता है, तेरे दिल का ख्याल कर कर के इतना रो लिया, इतना रो लिया, अल्लाह को इसका रोना इतना पसंद आया कि अल्लाह वादा कर रहा है कि अगर पूरी दुनिया के सारे इंसानों के बराबर भी इब्ने अब्दुल रहमान अल्लाह के यहाँ गुनाह लाएगा तो भी अल्लाह उसको बख्श देगा। महबूब, इसने तेरे दिल का ख्याल किया ना प्यारे, तेरे दिल का ख्याल किया, इसलिए अब इसने जो किया वैसे कुछ किया तो नहीं, लेकिन तेरे दिल का ख्याल करके तेरी इश्क में रोया। हम वादा करते हैं कि अगर ये तमाम इंसानों के, कायनात के इंसानों के बराबर भी पाप करके तो भी इसको जन्नत देंगे। बताओ मैं महबूब पे जब वही ना हुजूर खुश हो गए और साहबा से कहा, देखा इब्ने अब्दुल रहमान के लिए अल्लाह ने क्या भेजा पैगाम? तो इब्ने अब्दुल रहमान पूरी ताकत समेट कर उठ के बैठ गए। क्या कहा? मेरे अल्लाह ने बताया मुझे
आका ने कहा अल्लाह फरमाता है महबूब के इश्क में महबूब के दिल का ख्याल करके तू इतना रो चुका है, अल्लाह को तुझसे इतना प्यार आ गया है, तू इतना प्यार कर रहा है अल्लाह तुझसे कि फरमाता है कि कायनात के तमाम इंसान के बराबर भी गुनाह करके पाप लेके आएगा तो भी अल्लाह तुझे बख्श देगा। लोग सोच रहे थे अब भी अब्दुल रहमान उठ के खड़ा होगा, इब्ने अब्दुल रहमान अब भी उठ के खड़ा होगा, ताकत आएगी, कुव्वत आएगी, फिर से चलने फिरने लगेगा। लेकिन जैसे ये बात सुनी एक चीख मारी आसमान की तरफ देख के, मौला मैंने क्या किया और तूने क्या किया, और जमीन पे गिर पड़े। जब जमीन पे गिर पड़े लोगों ने उठाना चाहा, आका ने फरमाया अब ये कभी नहीं उठ सकेगा, मेरे दिल के दुखाने के एहसास ने, मेरे दिल के दुखाने के एहसास ने इसकी जान ले ली। जान आशिक महबूब का दिल न दुखे, इस एहसास से जान दे दी। जान आप बताओ जब किसी लड़की के कंधे पे हाथ रखती हो तो कभी सोचा कि हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब मोबाइल पर किसी के साथ चैटिंग करते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? नमाज के वक्त में खेलकूद में लगते तो हुजूर के दिल पे सोचो, वो तो कोई गुनाह भी नहीं था लेकिन जान दे दी। अब आका फरमाते हैं सुनो इसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जब जनाजा उठे तो मुझे बताना। देखो आशिकों के जनाजे में हुजूर खुद आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक बनो, आशिक, चीटिंग बाज मत बनो, जबानी दावेदार मत बनो। आशिक के लिए का गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा उठे तो मुझे इत्तला करना, मैं खुद इसके जनाजे में होऊंगा। आशिक के जनाजे में हुजूर खुद आते, और जब जनाजा उठा तो पूरा मदीना शरीक हुआ, क्योंकि हुजूर आ गए तो सभी आना थे। आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकले, मोहम्मद की गलियों को चूम के निकले। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद जनाजे में आए, पूरे मदीने के सहाबा को पता चला कि हुजूर जनाजे में आ रहे हैं, तो पूरा मदीना जनाजे में आ गया। लेकिन जब हुजूर चल रहे थे तो हुजूर पैर रख के नहीं चल रहे थे, हुजूर चल रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर रख के नहीं बल्कि उंगलियां रखकर, ऐसे पैरों की उंगलियां रख के चल रहे थे। साहबा ने कहा का हमने कभी आपको इस तरह चलते नहीं देखा, आज आप उंगलियां रख के एहतियात से चल रहे, पूरा पैर रख के नहीं चल रहे। फरमाया मेरे सहाबा जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखती, जो मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। ये मेरे दिल का ख्याल करके इतना रोया मेरे इश्क में, अल्लाह ने उसको अपना महबूब बना लिया। आज उसके जनाजे में मदीने में इतने फरिश्ते जमीन पे उतर आए हैं कि मदीने की जमीन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं उंगलियां रख करके चलूं। मैं उंगलियां, आशिकों को ये मकाम मिलता है। अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम दिल दुखा के बेवफा बनते हो, तन्हाई में गुनाह करते हो, कोई देखे न देखे, अल्लाह रसूल जरूर देखते। नबी हमारी जान से ज्यादा करीब है, आपके ऊपर है, आप जो बनना चाहे। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।